I think a very clear distinction has to be drawn. Nobody would tag you anti-national if you ask the government. But I'll quote the question. Your viewers and all panelists can very carefully understand, are these questions for the government or are these questions for the Sena? Before the war, we saw that if Pakistan has said something, we should believe them. This was Saifuddin Soz, the Congress leader, former member of parliament, and the president of Jammu and Kashmir. Siddharamaiah, chief minister, was saying that we do not want war. Was this for the government? Was this a question to the government? When we do a surgical strike, when we do a aerial strike, you ask, kahan hai sabut, kahan gira? Army is coming and doing the press conference. Our desh ki Sena is coming and saying that these are the casualties that we have inflicted on the enemy. This is the attack that we have done. And Congress party and Aam Aadmi party, all such parties are busy asking, ped gire the ki patthar gire the ki patte gire the. Now Congress MLA from Karnataka is categorically speaking, but my friend Kapil Madan cannot understand what he is saying because he understands English or Hindi. It's widely reported. Go and read it. He is saying that our jets went there, they came back, nothing happened. Is this questioning the government? If you think this is questioning the government, I'm very sorry. You are wrong. Our army, our Sena, our DGMO, everybody came out. They are making statements, but you wish to believe whatever Pakistan's narrative is there, and that is the problem with the Congress party. And now this is the new normal for the Congress party and the entire opposition. This has become a new normal in the past 10 years. You would question anything and everything that our country and our army says, but you have no questions on what a different prime minister, a different president, a leader of a different nation has to say. Our DGMO will say that these conversations happened, but you are fixated until that president had to revoke his statement. But you are fixated to Absolutely. ask, no, he has said it, and so we will believe that president. We will not believe the DGMO. We will not believe the Sena of this country. If this is the new normal for the Congress party, taking instructions from their foreign secular friends who back the radical forces in the world. If you are taking such instructions and you are standing as a fifth column in this country, you are standing as another front which India has to fight. I must say it's a very sorry state of affairs. Okay, I want to bring in Kapil Srivastava as well. Kapil Srivastava, प्रधानमंत्री आदमपुर बेस जाते हैं, रक्षा मंत्री जो है वो श्रीनगर एयरबेस जाते हैं, आज वो भुज एयरबेस में थे, जो कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने वहां अपनी मिसाइल डाल करके बर्बाद कर दिया। एक बहुत बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां कुछ नहीं हुआ है, हमारे रनवेज फंक्शनल हैं, हमारे ऑपरेशंस बिल्कुल नॉर्मल हैं, जबकि हमने उनके इंस्टॉलेशंस को बर्बाद किया है। तो वो चित्रजीवी बन जाते हैं। क्या यह बिना किसी मतलब का क्रिटिसिज्म नहीं है? स्वाति जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, पाकिस्तान के इन क्वेश्चंस, बेहुदे क्वेश्चंस के जवाब के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं? अच्छा, हमारी सेनाओं के शौर्य के लिए और पराक्रम और उनको वाहवाही करने के लिए नहीं जाते हैं। आपका कहना तो ही, और अगर आप पाकिस्तान की इतनी बात मानते हैं तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि साहब हम नहीं झुके हैं, ये झुके हैं। वो तो कहा कि हमने सीज फायर का उल्लंघन किया। आप किसको मान रहे हैं? आप किसको मान रहे हैं? पाकिस्तान जो कह रहा है उसको मान रहे हैं, या प्रधानमंत्री जाकर के जो दिखा रहे हैं आदमपुर एयरबेस में कि कोई नुकसान नहीं हुआ उसको मान रहे हैं? ना, सुनिए, मैं बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं मानता। लेकिन आपने अभी कहा कि पाकिस्तान ने कहा, इसलिए क्योंकि उस फर्जीवाड़े को एक्सपोज करना जरूरी है सर, उस फर्जीवाड़े को एक्सपोज करना जरूरी है। एक नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से चला रहा है। कपिल जी सुनिए, दो फ्रंट्स पे, दो नहीं, इनफैक्ट मल्टीपल फ्रंट्स पे ये जंग चल रही है। एक तो हमने प्रिसिशन स्ट्राइक करके जवाब दे दिया, दूसरा एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही है। कपिल जी, आप जानते हैं कि क्या फर्जीवाड़ा सोशल मीडिया पर हो रहा है, उसका जवाब नहीं देना चाहिए क्या? मुझे बताइए ना स्वाति, मेन मीडिया पे भी तो हो रहा है। आखिर मीडिया वालों ने, तमाम मीडिया के जो नेशनल चैनल्स, उन्होंने माफी मांगी कि नहीं? वो तो इस्लामाबाद पे कब्जा करा दिए थे, कराची पर कब्जा करा दिए थे। आपको मालूम है कि एक इंडियन मुस्लिम्स को ही आतंकवादी बता दिया गया था, जो क्रॉस फायरिंग में मारा गया था। शर्म नहीं आती है मीडिया को? नहीं, एक मिनट। और वो लोग जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया था। वही डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट पे वापस चले जाते हैं। पहले कहते हैं कि मैंने सीजफायर करवा दिया, फिर कहा कि नहीं मैंने हेल्प किया। वो ट्रेड के लिए कहते हैं कि हमने ट्रेड का मुद्दा उठाया, सीजफायर हो गया। आपका एमईए आपसे कह रहा है कि ट्रेड की बातचीत ऐसे मौकों पर नहीं होती है और ना कभी बातचीत में ट्रेड उठा। आप उनको क्यों नहीं मान रहे हैं? स्वाति, मैं सबसे पहली बात एक बात कह रहा हूं, अमेरिका पलट जाने के बाद भी तो कह रहा है कि हमने मध्यस्थता किया।
अगर आपने help मध्यस्थता किया तो नहीं, क्या किया? हमने हेल्प किया है, वार्ता में help हमने मीडिएट किया है, नहीं कहा उन्होंने। आप ये बताइए, उन्होंने कहा आई विल नॉट से दैट आई डिड इट, आई विल नॉट से दैट आई डिड इट, बट आई श्योर एज हेल हेल्प। मतलब अलग हो जाता है कपीश जी। साथी आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती हैं, आप सुनना नहीं चाहती हैं। आप ही तो बोल रहे मैं हैं। स्पष्ट रूप से पूछ आपसे रहा हूं, पहले कपिल मदान जी बोल रहे तो थे। माना जाए ना कि अमेरिका ने हेल्प की है, तो मध्यस्थता और क्या होता है? नहीं, एक मिनट, एक ये होता है कि आप दोनों देशों से संपर्क में हैं, एक ये होता है कि आप दोनों देशों से संपर्क में और आप कह रहे हैं कि आपस में बातचीत कीजिए, मसले को सुलझा दीजिए, लेकिन अमेरिका ने फोन करके आपसे ये नहीं कहा कि हम सीज फायर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो डीजीएमओ ने किया पाकिस्तान के। अच्छा, डीजीएमओ अगर कह देगा तो आप रोक लेंगे? उन्होंने रिक्वेस्ट की और आपके आर्मी के, एक सेकेंड, आपके आर्म्ड फोर्सेस के डीजीएमओ ने, आपके आर्म्ड फोर्सेस के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट को अग्रीमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग बताया, क्योंकि ये एक जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं सर, टेररिज्म के खिलाफ थी। स्वाति प्लीज विपक्ष को ना पढ़ाइए, और आप भी खूब अच्छे से जान रही हैं क्या जान रही हूं मैं? डीजीएमओ लेवल पे कोई भी फैसले नहीं लिए जाते हैं, ये हमेशा प्रधानमंत्री लेवल पे फैसले सरकार लेती है, और आप कह रही हैं। और मैं दूसरी बात ये बताइए, हाँ। अमेरिका जो खुलेआम आपके कहने से पहले वो कह रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करा दिया है, ये मध्यस्थता नहीं तो है? उन्होंने क्या है? उसके बाद जो कहा हमने हेल्प किया, क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स पर विश्वास कर सकते हैं कपीश जी, जो बार बार पलट रहे हैं अपनी बात से? मोदी जी ने, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2 जगह भारत की संप्रभुता को बुरी तरीके से खोया। एक तो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को बुला के पठानकोट एयरवेज पे उन्होंने जांच कराई, भारतीय एजेंसीज के अलावा आप दूसरे से करा ही नहीं सकते थे, और वही पाकिस्तान ने मना कर दिया जब भारत ने उनके यहां जांच की मांग की, कहा कि हम सॉवरेन राष्ट्र हैं। आपको उस समय भी मुंह की खानी पड़ी, और आज अमेरिका कहता है कि हमने ट्रेड की धमकी दे करके ये मध्यस्थता कराई, और अब जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो वो बात को सुधारने की कोशिश आपके एक मिनट, प्रेशर कौन डाल रहा है? कौन प्रेशर डाल रहा है? नहीं, प्रेशर कौन डाल रहा है? भारत डाल रहा है, अन्य और देशों से डाला जा रहा है। किस पर? किस पर? फिर भी कहा कि हमने मध्यस्थता की नहीं, एक मिनट, किस पर? तो पहले तो अमेरिका इतना महान देश है और उसके राष्ट्रपति इतने महान और पावरफुल है कि वो कहते हैं सीज फायर हो जाए और आप मान लेते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि भारत उन पर प्रेशर बना रहा है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि भारत उन पर प्रेशर बना रहा है और बाकी देशों का प्रेशर जा रहा है, और इतने पावरफुल प्रेसिडेंट उस प्रेशर में दब जा रहे हैं। एक मिनट।